So it is problem 15.26 एनडी भट्ट का प्रॉब्लम है और इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस जो हैं ऑफ सॉलिड्स. So what is given in the problem? Draw the projections of a cone resting on the ground on its base and show on them the shortest path by which a point P starting from a point on the circumference of the base and moving around the cone will return to the same point. The base of the cone is 65 mm diameter and x is 75 mm long. So let's do one thing. First draw the projection of solid. ठीक है, तो कोन का प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं. Base is 65 mm diameter and axis is 75 mm long and it is resting on the ground on its base. Okay, so top view will be a circle and front view will show a triangle. So let us draw the projections. So this is our XY line. This is the top view. And since it is a cone, so in case of cone or cylinder, normally we divide the circle into number of equal parts, any number of equal parts. So say here we have divided the circle into 12 number of equal parts and we have number the point also. So this is the top view of cone और इसको हमने divide किया 12 number of parts में and these are the top views of the generators. जो cone के generators हैं ये उनके top view हैं. So this is point is say O. So this is O1 is one generator, O7 is another, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9, 10, 11, 12, etc. Now we'll draw the front view. So we'll project this. We'll draw the projections from all these points. ये projectors हम draw करेंगे इन सभी points से. So XY line पे हमें points मिल जाएंगे और फिर axis की जो length है उसको हम mark कर लेंगे. So this is our O dash, the apex और ये base के points 1 dash से लेकर 12 dash तक. And this is the axis length is 75. So this length is 75 mm. यहाँ से लेके यहाँ तक ये 75 mm की length है. ये axis length है. ठीक है. And the diameter of this base, this is 65. No? So this is 65. ठीक है. So we have drawn the projection of solid, that is the cone. Now there is a point P. A P is a point which is situated on the circumference. जो base की circumference है उस पर है और वो point यहाँ पर है या यहाँ कर कहीं भी वो इस तरह से मूव करता है कि वो कोन पे ट्रेवल कर लेता है और वापस उसी पॉइंट पे आता है और जो डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू शो on them the shortest path by which a point P starting from a point on the circumference of the base and moving around the cone will return to the same point. वापस उसी जगह पे वो पॉइंट आ जाएगा और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं यदि हमें सॉल्व करना है तो वन थिंग इज वी विल ड्रॉ द डेवलपमेंट. हम डेवलपमेंट बना लेते हैं और डेवलपमेंट की जो सरफेस रहेगी उस पर देख लेंगे कि जब किसी पॉइंट से स्टार्ट करके दूसरे पॉइंट पर आ रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा. सो फॉर दैट लेट अस ड्रॉ द डेवलपमेंट. हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं. डेवलपमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विल टेक द ट्रू लेंथ ऑफ वन ऑफ द जनरेटर ऑफ द कोन. सो लेट्स फाइंड आउट कि इसमें से ट्रू लेंथ कौन सी है. सो वी हैव दिस 12 जनरेटर्स O dash 1 dash से लेके O dash 12 dash तक. We have 12 generators. इन 12 generators में से ट्रू लेंथ वाले जनरेटर कौन से? फ्रंट व्यू में हमें ट्रू लेंथ चाहिए कि O dash 1 dash है,
ओडेश 2 डेज है, ओडेश 3 डेज है, ओडेश 4 डेज है, ओडेश 5 डेज है, कौन सी? तो if we are interested in finding out the true length in the front view, so first check the top view of these length. जो भी यहाँ पर फ्रंट व्यू में लेंथ से हम ये जानना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द ट्रू लेंथ ऑफ ओडेश 1 डेश, कि ये ओडेश 1 डेश जिस लाइन का प्रोजेक्शन है वो ये ट्रू लेंथ का है या नहीं। तो इसका टॉप व्यू को देखो, ऑब्जर्व इट्स टॉप व्यू, its top view is O1. If this O1 is parallel, if this O1 is parallel to the XY, then this line represent true length. तो ये लाइन जो है वो true length को represent कर रही है। ठीक है, क्यों represent कर रही है? Because its top view is parallel to XY। ठीक है, ओके। सो कोन का डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक अ पॉइंट O, O पॉइंट लेके ये स्लैंट, ये जो जनरेटर की लेंथ है, इसको रेडियस लेके एक आर्क बनाना है, तो हम एक आर्क बना देंगे। वो हम अलग से भी बना सकते हैं या यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। चलो, देन इस आर्क पर ये जो आर्क बनेगी, हमने ओडेश को सेंटर लिया एंड ओडेश 1 डेश के बराबर रेडियस लेके जो आर्क बनाई है, इस आर्क को हम विल डिवाइड इट इनटू 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। मतलब इस आर्क पे हम 12 पॉइंट्स मार्क कर देंगे। ठीक है, तो जितने टॉप व्यू में लाइक डिवीजन उतने ही ऊपर डिवीजन करना है ना, उतना। अदरवाइज द मेथड इज वी हैव दिस एंगल, यहां से लेके ये जो है ना आर्क लेंथ, यहां से लेके यहां तक की आर्क लेंथ बनेगी, वो डिपेंड करेगा दिस एंगल पे आल्सो, ये एंगल कितना है। ठीक है, एंड दिस एंगल यहां पर जो आया इट इज 143 डिग्री आया। कैसे आया? दिस एंगल इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू r बाय l इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तब हम यहां से लेके यहां तक ये आर्क मिल जाएगी और उसके बाद भी इस आर्क को हम 12 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे हमने इसको किया था। और विल मार्क दिस पॉइंट्स 1 डेश, 2 डेश, 3 डेश, 4 डेश, या हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 1 लास्ट वाला, ये 12 नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए। इस तरह से हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट, ये है। अब पॉइंट ने, पॉइंट कहां पर है? सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है। ठीक है, यहां पर है या यहां पर है, तो एक सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है। सो लेट अस फाइंड आउट, लेट अस अज्यूम दैट द पॉइंट इज सिचुएटेड एट द P। ये P1 डैश 1 वाला जो पॉइंट है ना, ये P हमारा यहाँ पर, ये रहा पॉइंट P। अब इस P ने इस कोन पर ट्रेवल करना है। ठीक है, ये कोन है, इस कोन पर ट्रेवल करना, और किस तरह से करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस इसी पॉइंट पे आ जाए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस कोन में यदि हम बात करें? द शॉर्टेस्ट पाथ इज दिस। ये पॉइंट O1 है और ये पॉइंट अगेन 1 है, मतलब पॉइंट ने यहां से चालू करना है और इसी जगह पर आना है। तो इसी जगह पर आना है वापस, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? इनिशियल और फाइनल डेस्टिनेशन का, दिस इज द फाइनल पाथ। कि यदि पॉइंट इस तरह से ट्रेवल करता है तो वो यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल कर लेगा। ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया उसका। ठीक है, अब इस शॉर्टेस्ट पाथ को हमें कहां शो करना है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हिच इज ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। तो इसको कहां पर शो करना है? इसको कहां पर शो करना है? इसको कोन पर, यहां प्रोजेक्शन में लेकर आना है, यहां पर इस फ्रंट व्यू में और इस टॉप व्यू में। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल, क्या करेंगे हम? व्हाट इज द प्रोसीजर? डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर था कि यदि इसको कोई प्लेन कट करता है तो हम यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करते हैं और उन पॉइंट्स को यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दिस इज द लाइन, इस लाइन ने कोन के जो जनरेटर से उनको कट किया है, तो मार्क दैट पॉइंट्स। ये पॉइंट मार्क कर लो, 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 मार्क दिस पॉइंट आल्सो, ये भी मार्क कर लो, ये मार्क कर लो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
This is the point of intersection and this is the point. Yes. Let this point is, ये हम इसको बोल देते हैं, this is P1 है ना, ये पहला वाला जो पॉइंट है P1, ये दूसरा वाला जो पॉइंट ये this is P2, इसकी लोकेशन नेक्स्ट P2 हो गई, देन नेक्स्ट लोकेशन इज P3, मूव कर रहा है, P4, P5, P6, P7, P8, P9 और P10, P11, P12 और ये अगेन P1। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम प्रोजेक्शन में लेके आते हैं। कैसे प्रोजेक्शन में लेके आएंगे? व्हाट विल डू कि विल मेजर द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम दिस ओडेश, जो सेंटर था, इस सेंटर से हमने ये ट्रू लेंथ लेकर ये जो आर्क बनाई है, ये है ना, ये तो ये जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट से फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट नंबर 1 P1 है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहां से इस ओडेश से विल मेजर P1। ठीक है, तो ओडेश से P1 तो मेजर करा, तो ये इसकी जनरेटर की लेंथ तक, मतलब यहीं पे पॉइंट, ये रहा पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। टॉप व्यू में देखें तो यहां पर एक पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट P2, तो हम क्या करेंगे, ओडेश P2 को मेजर करेंगे, ओडेश P2 को मेजर करेंगे, ये P1 है, ये P2 है, तो ओडेश P2 को मेजर करेंगे, मतलब ये डिस्टेंस मेजर करेंगे यहां से लेके यहाँ तक, यहाँ इस ओडेश से लेके इस P2 तक के। ठीक है, और क्या करेंगे, ओडेश को सेंटर लेके रेडियस हम लेंगे P2, ओडेश P2 के बराबर का रेडियस, और एक आर्क बना देंगे। ठीक है, ये आर्क बना देंगे, हम आर्क बना देंगे ऐसे, कहां तक, ये जो जनरेटर की ट्रू लेंथ है ना, यहां तक। ठीक है, यहां तक बनाएंगे। फिर यहां से हम बेस के पैरेलल लाइन बनाएंगे, और इस लाइन को कहां पे ले जाएंगे, जो ये ओडेश टूडेश वाली जो लाइन थी ना, ओडेश टूडेश वाली लाइन, यहां पर है पॉइंट, ये P2 डैश, सो दिस इज P2 डैश, ये P2 डैश मिला। देन P3 मार्क करना है, तो P3 मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, P3 डैश यहां पे चाहिए ना, कौन से जनरेटर पे आएगा, ओडेश 3 डैश वाले जनरेटर पे आएगा, इस जनरेटर पे आएगा, ओडेश 3 डैश वाले जनरेटर पे। तो हम ओडेश P3 का रेडियस लेंगे और इसको इस ट्रू लेंथ पर लेके आएंगे, इस ट्रू लेंथ पे प्रोजेक्ट करेंगे, फिर यहां से पैरेलल लाइन बनाएंगे O3 डैश तक, तब हमें ये पॉइंट P3 मिलेगा। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट था ना P2। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हमने किया, ये P3। ठीक है, P3 से लिया ये आर्क बना P3 से, ये ट्रू लेंथ तक, और फिर यहां से ये इसके ऊपर मार्क किया, सो दिस पॉइंट इज P3 डैश। नेक्स्ट के लिए P4 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, तो ये सेंटर लेके ये रेडियस लेके हम यहां से इसको करेंगे, बनाएंगे, और ये ट्रू लेंथ पे लेंगे, और फिर इसको P4 तक लेके आएंगे, सो दिस इज P4 डैश ना, P4 डैश। ठीक है, फिर ओडेश से P5, ओडेश से P5, ये P5 इतना लेके हम ये बनाएंगे सर्कल। ठीक है, इस ट्रू लेंथ पर प्रोजेक्ट किया, और फिर यहां से ओडेश 5 डैश वाली लाइन पर लेके आएंगे, तो ये पॉइंट मिलेगा P5 डैश। देन नेक्स्ट वाला पॉइंट P6 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ये ले आएंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा P6 डैश। देन नेक्स्ट वाला पॉइंट P7 वाला, तो P7 वाला जो है वो पॉइंट हमें मिल। So we obtained the points P1 dash, P2 dash, P3 dash, P4 dash, P5 dash, P6 dash, P7 dash, P8 dash, P9 dash, P10 dash, P11 dash, and P12 dash. Okay. So in the front view, we obtained these points. Now join these points. इसको यदि हम ज्वाइन करें P से P1, P2 एक्सेट्रा, सभी को ज्वाइन करें यहाँ पर फ्रंट व्यू में, तो हमें जो है वो पाथ मिलेगा, उस पाथ का फ्रंट व्यू मिलेगा। ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस इज द फ्रंट व्यू। ये उस पाथ जो पॉइंट ने ट्रेवल किया है, ये उसका पाथ हमने प्रोजेक्शन में लेकर आए। टॉप व्यू में देखें पाथ कैसा है, तो अब ये जो पॉइंट्स फ्रंट व्यू में ऑब्टेन हुए हैं, इन पॉइंट्स को प्रोजेक्ट दिस पॉइंट इन द टॉप व्यू, तो हम टॉप व्यू में इनको प्रोजेक्ट कर लेते हैं।
सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, P1 यहाँ पर है, दिस इज द P and P1 बोथ आर द सेम पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट किया उसने और इसकी कोन पे जो है वो ट्रेवल करने के बाद में वापस इसी जगह पे आया, बट उसने जो पाथ ट्रेवल किया इस कोन पे वो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करके वापस अपनी जगह पर गया, घूम फिर के आ गया, वापस अपनी जगह पे आ गया। सो दिस इज P1। नेक्स्ट पॉइंट इज P2 डैश। ये जो P2 डैश है, P2 डैश मतलब O डैश 2 डैश पे जो पॉइंट है P2 डैश, इस P2 डैश को हमें नीचे लेकर आना है। तो नीचे ये जो पॉइंट्स आएगा वो आएगा O2 वाला जो जनरेटर है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर शिफ्ट। तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं, ये हमने किया ट्रांसफर, ये यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट हुआ। अब उसके करस्पॉन्डिंग एक और पॉइंट है सिमेट्रिकल, जो कि O12 वाला जनरेटर, क्योंकि O12 वाला जनरेटर के पीछे O2 जनरेटर है फ्रंट व्यू में, ये फ्रंट व्यू। तो हम ये जो पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं फ्रंट व्यू में P2 डैश, यहाँ पर P2 डैश के साथ में P12 डैश भी है, तो यहाँ पर हमने P2 मिला और यहाँ पर P12 डैश मिला। सो दिस इज P2 एंड दिस इज P12 डैश। सिमिलरली अब P3 डैश वाला जो पॉइंट देखें तो यहाँ पर दो पॉइंट है, P3 डैश एंड P11 डैश, ये दो पॉइंट। तो ये टॉप व्यू में इसको हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। ये टॉप व्यू में मिलेगा हमें O3 लाइन पर और O11 लाइन पर। O3 पर मिलेगा पॉइंट P3 और O11 पे मिलेगा P11। देन O डैश 4 डैश और O डैश 10 डैश, ये जो लाइन है सेंटर लाइन, ये जनरेटर, इस पे दो पॉइंट है हमारे, दैट इज P4 डैश और P10 डैश। तो हम P4 डैश तो ये O4 पे मिलेगा यहाँ पर और O10 यहाँ पर। अब ये जो है O डैश 10 डैश और O डैश 4 डैश, और नीचे देखें तो O4 और O10, ये फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू दोनों XY के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ट्रू लेंथ की जनरेटर पे यहाँ प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से नीचे लेकर आएंगे और फिर यहाँ से हम ये 90 डिग्री घुमा देंगे, इतना रेडियस लेके यहाँ से, इस रेडियस से ये आर्क बना देंगे। तो हमें ये O4 पे ये कट मिलेगा और O11 पे ये कट मिलेगा। तो ये पॉइंट हमारे हो जाएंगे P4 और P10। देन नेक्स्ट पॉइंट ये वाले जनरेटर पे O डैश 5 डैश और O डैश 9 डैश वाले जनरेटर पे, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट है P5 डैश और P9 डैश। इसको भी हम नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये नीचे ट्रांसफर किया यहाँ पर, तो ये हमें मिलेगा O9 यहाँ पर और O5 इस वाली जनरेटर यहाँ लाइन पे। तो यहाँ पे मिलेगा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पॉइंट मिला। ये हो गया P5 और ये नीचे वाला जो है वो P9। फिर अगले वाला ये वाला जनरेटर देखें हम, O डैश 6 डैश और O डैश 8 डैश, इस पे दो पॉइंट हैं P6 डैश और P8 डैश। इसको भी हम टॉप व्यू में करें तो वो आएगा पॉइंट हमारा O6 पर आएगा और O8 पर आएगा। ये हमने ट्रांसफर करा है यहाँ पर, ये आया पॉइंट, दिस इज P6 और ये पॉइंट हो गया P8। और देन लास्टली जो 7 वाला जो पॉइंट है उसको हमने ट्रांसफर किया, तो ये 7 वाला पॉइंट जो है वो ट्रांसफर हो गया। सो दिस इज P7। तो ये जो पॉइंट होगा अब यहाँ पे, ये P1, P2, P3, P4, इनको हम जोड़ेंगे स्मूथ कर्व से। ये टॉप व्यू में देखिए स्मूथ कर्व से ये पाथ है, ये वो पाथ टॉप व्यू में शो हो रहा है, जो शॉर्टेस्ट पाथ इसने P ने ट्रेवल किया था, वापस अपनी जगह पर आ गया। ये टॉप व्यू है में शो है वो पाथ और ये फ्रंट व्यू में शो हो रहा है ये पाथ। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, डेवलपमेंट का रिवर्स डेवलपमेंट का यूज किया कि ये जो पाथ है, दिस इज द पाथ। ये पाथ क्या था डेवलपमेंट में, ये पाथ स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ जो यहां से लेके यहां तक ज्वाइन हो रहा है। और उसको हम जब वापस प्रोजेक्शन में ले गए तो वो इस तरह से जो है वो ज्वाइन हुआ। ठीक है,
So this is how we will solve this type of problems. ठीक है, any query or any problem? कुछ समझ में नहीं आया हो? It's a simple procedure. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाए सर। जब डेवलपमेंट करके अपन ने सर उसमें वो आर्क्स काटे हैं, वो कोई रैंडम लेंथ के हैं या फिर कोई लेंथ के हैं? नहीं नहीं, हमने ये यहां से लेके यहां तक का आर्क बनाया ना, ये इतना एंगल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है ये आर्क, यहाँ पर वो एंगल हमने निकाला है यहाँ से। यस सर। ठीक है, तो ये हमें आर्क मिला। उसके बाद इस आर्क के हम 12 नंबर ऑफ डिविजन्स करेंगे। ओके सर, मतलब पहले 143 का आर्क बनाएंगे, हाँ, फिर पहले उसको वो डिवीजन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में उसको डिवाइड करेंगे। ओके सर सर। सर जैसे अगर अपन ने टॉप व्यू में शुरू में ही लाइक सर्कल के 12 पार्ट्स ना करके कुछ और लाइक कुछ और किए होते तो फिर वो आर्क में भी उतने ही होते ना? हाँ, दैट कैन बी। आप इसको शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ मार्क किया, फिर यहाँ मार्क किया, इस तरह से। नहीं सर, जैसे मान लो कि सर्कल के हमने 8 डिवीजन किए होंगे, सर्कल के 8 कोई भी। डिविजन्स। हाँ, तो वो आर्क के भी इतनी डिवीजन होंगे ना? हाँ हाँ, मतलब जो बेस सर्कल के जितने नंबर ऑफ डिविजन्स हम करेंगे, ये जो आर्क रहेगा उसके भी उतने ही नंबर ऑफ डिविजन्स करना है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं सिलेंडर। हाँ सर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।